YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 31वां वीडियो 14-31। आज दोस्तों हम इसका पहले चैप्टर के दूसरे सेक्शन का सूत्र 24 और 25 पढ़ेंगे। 1-2-24 and 25. These are last two sutras of this section. After this, we will move to the third section. Friends, the first section was the story of Nachiketa. The second section was the choice. Lord Death, while explaining the self, starts talking about you. In the last sutra, he talked about your essential qualities, where all you miss. And now he elaborates what is wrong with you. Man of wrongs, man of sinful conduct. पिछले सूत्र में बताया गया था जो आत्मा है ये आत्म कृपा साध्य है। आत्मा की कृपा से ही आप आत्मा के बारे में जान सकते हो। और इसमें बताया जा रहा है कि आत्मज्ञान का अनअधिकारी कौन है। कैसे कैसे यू गेट टोटली डिस्क्वालिफाइड टू नो अबाउट आत्मन। फ्रेंड्स, जस्ट नो देयर इज नो अदर वे। यू कैन नॉट जस्ट स्ट्रेच आउट टू रीच देयर. You cannot fall into it. You cannot tumble into it. You cannot bump into it. ऐसे नहीं होता है दोस्तों. You cannot stagger into it. You have to attain it. You have to reach there. And there is a way. Okay friends, let us continue. 1-2-24. ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञाने नैनन मापन्युतात्, ना अविरतः दुश्चरितात्. He who has not desisted from bad conduct. न अशांतः न असमाहितः, whose senses are not under control, whose mind is not concentrated. न अशांत मानसः वा अपि, whose mind is also not free from anxiety. प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्. He cannot attain this self even through knowledge. दोस्तों, पहले बात की थी of wanting God alone. This was the desirable quality of the seeker. और अब बात कर रहे हैं दुश्चरितात् की. The man of undesirable conduct.
That is what a seeker should not be. The man of bad conduct, engages in nishid, prohibited karmas, या काम्य. Such a man is always desire ridden. Such a man neglects daily and occasional duties, नित्य एंड निमित्त कर्म जिसे कहा गया है, जो हमारे करने योग्य हैं. Not quietening the senses and not having the mind focused on the goal. A restless mind that is uncontrolled indulges in sinful tendencies without sham and dam, internal and external checkpoints that we talked about. The mind is not focused or concentrated. Such a man rejoices in अधर्म. और अगर ऐसे आदमी के माइंड में कोई ट्रेनिंग हुई भी है तो उसकी तो नज़र हमेशा फल पे रहती है, ट्रॉफी पे रहती है. दैट ही एक्सपेक्ट्स टू गेट फॉर द साधना दैट ही इज डूइंग. ये एक बिजनेस लाइक मेंटलिटी है, रिवार्ड्स पाने की मेंटलिटी है. द माइंड इज ऑलवेज सेट ऑन द फ्यूचर. इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड. सच माइंड इज नॉट फिट फॉर द विजन ऑफ द सेल्फ. इट डज नॉट गिव टाइम फॉर इवोल्यूशन टू अनफोल्ड इटसेल्फ. It is impatient, wanting to grab. Such a mind wants to achieve things fast and carries the same mentality into the spiritual realm as well. This self is not for such people. Even if they have all the knowledge. We should therefore do sadhana for the love of it. We must enjoy being dispassionate. We should not feel that we are losing out on anything. Self-denial should never be done grudgingly. इसीलिए दोस्तों, जो भक्त है ना, he is taught never to want even liberation. मोक्ष की भी कामना नहीं रखनी चाहिए भक्त को, क्योंकि it takes away his presence of mind. We do not have to be preoccupied with results. और दोस्तों, जितने भी ज्ञानी हुए हैं ना हमारे यहाँ, उन्होंने यहाँ पे गुरु की महिमा को भी ऐड किया है. बताते हैं, जो ये मार्ग है ना दोस्तों, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है. The path is so subtle and self-delusion can be so overwhelming that a guru is needed. A guru is needed to prevent man from being content with little gains and miss the self. तो दोस्तों, इस सूत्र में क्या बताया? जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसके इंद्रियां शांत नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है. जो दुष्चरित है,
प्रतिषिद्ध कर्मों से युक्त है, पाप कर्म से अविरत है, अनुपरत है, वह नहीं। जो इंद्रियों की चंचलता के कारण अशांत है, वह भी नहीं। जो असमाहित है अर्थात जिसका चित्त एकाग्र नहीं है, वह भी नहीं। जो विक्षिप्त चित्त है, वह भी नहीं। और समाहित चित्त होने पर भी उस एकाग्रता के फल का इच्छुक होने के कारण जो अशांत चित्त है, जिसका चित्त निरंतर व्यापार करता है, वह पुरुष भी इस प्रस्तुत आत्मा को केवल आत्मज्ञान द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। फ्रेंड्स, यमराज तो सब कुछ साफ साफ बता ही दे रहे हैं। क्या बताया उन्होंने? जो पाप कर्म और इंद्रियों की चंचलता से हटा हुआ है और समाहित चित्त और उस समाधान के फल से भी उपशांत मना है, वह आचार्यवान साधक ही ब्रह्म ज्ञान द्वारा उपर्युक्त आत्मा को प्राप्त कर सकता है। He who has not turned away from bad conduct, whose senses are not subdued, whose mind is not concentrated, whose mind is not pacified, can never obtain the Atman by knowledge. These are inner barricades that we in our ignorance have raised between ourselves and our own self. Self-realization and the consequent joy of Godhood are denied in this mantra. किस को? Who has not turned away from acts of adharma, who has not brought his senses under control, whose mind has not therefore gained any capacity to concentrate, and who has not found in his mind a peace with itself. इस मंत्र में दोस्तों वह सब बताया गया है by which we can come to intensify our sadhana. सबसे पहले तो जो ये immoral and unethical practices हैं, इनसे हटना है। यदि इनसे नहीं हट सकते हो तो जितना भी जप कर लो, तप कर लो, मंदिर की घंटियां बजा लो, ये चंदन है, पुष्प वर्षा कर लो, टेम्पल्स में चले जाओ। और दोस्तों, जो मेरे पास ये 100 साल पुरानी प्रिंटेड किताब है, ये तो कहती है कि चर्चिज में चले जाओ और मॉस्क्स में चले जाओ, शब्द यूज करती है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। एंड वी फॉल अ प्रे अगेंस्ट the inefficiency of the religions. नए जंगल में फंस जाते हैं हम लोग। फिर यह किताब दोस्तों फ्री मॉन्गरिंग की बात करती है उस समय। तो ज्ञान तो दोस्तों हमारा था ही ग्रेट। सिंपल है दोस्तों। When an individual has lived at least for some time respecting dharma, then he has the gate pass to the arena of spiritual practices. Then again, to gain the higher worlds of greater perfections, the aspirant
should learn slowly the art of controlling his sense organs from their habits of reveling mad and gushing forth ceaselessly into the backwaters of sorrow. This breeding sense objects. Dharmraj means that there are a very few indeed who are such full-fledged and sincere seekers. लॉर्ड डेथ तो बता रहे हैं दोस्तों कि जो ये फिट कैंडिडेट फॉर वेदांत प्रैक्टिसेस है, ये कोई फेरी टेल नहीं होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये कोई आसमान से गिरता है, you know. The fit student is pressed out between the diligent urgency felt and the sincerity of pursuit put in. And how rare is that? दोस्तों, यह आइडिया था धर्मराज के माइंड में, that in earlier Sutra 21 he cried out. He was compelled to say, "Who else therefore save myself is able to comprehend the God." दोस्तों, फिर आता है इस सेक्शन का आखिरी सूत्र 1-2-25। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः। मृत्युर्यस्योपसचेनम क इत्था वेद यत्र सह। दोस्तों, यह एक बहुत ही गहरा सूत्र है। इसकी विवेचना तो विभिन्न शास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से की है। मेरा तो आप लोगों से अनुरोध है कि आपको अपना विवेक लगाना ही पड़ेगा इसको समझने के लिए। यात्रा पे हैं तो इस स्टेज को तो दोस्तों आपको स्वयं ही गहरे से समझना पड़ेगा। बहुत ही विचित्र बात कह गए हैं यहाँ पे लॉर्ड डेथ। इसको समझना और स्लिप होना साथ साथ चलता है। टू द सेल्फ the Brahmana and Kshatriya classes are both as if it were a main dish for the Lord. To him, death itself is merely a side dish. He who knows thus of sinful conduct, where would he be? जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ओदन हैं, ओदन होती है मेन डिश, स्टैपल डाइट, तथा मृत्यु जिसका उपसेचन है, शाक आदि साइड डिशेस, वह जहां है उसे कौन इस प्रकार जान सकता है। दोस्तों, दिस इज अ अनफोल्डमेंट ऑफ अ काइंड ऑफ ट्रूथ बिटवीन योर गॉड एंड योरसेल्फ। ये है तो दोस्तों बॉडीलेस, तभी जो भी ये है, इसकी जो उम्र है, ये जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, एनर्जी है, सुपर फाइन स्पिरिट है, लाइट है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है,
और जिस तरह से आप कर्म तो करते ही हो, तो दोस्तों ये सूत्र ऐसा कहता है कि आपके जो कर्म है ना जिंदगी के, वो या तो ब्राह्मण रूपी हैं, या क्षत्रिय रूपी हैं, या फिर वैश्य रूपी भी हैं और शूद्र रूपी भी हैं। जो आपके कर्म ब्राह्मण रूपी हैं और जो क्षत्रिय रूपी हैं, मतलब आप ज्ञान अर्जन में लगे हुए हो, ज्ञान को बढ़ाने में लगे हुए हो, आप उसकी जो सटल फॉर्म्स हैं उनको समझ के जगत को समझाने में ही बिजी रहते हो। और क्षत्रिय मतलब ये जो धर्म है विधाता का, इसको सक्षम करने में, आगे बढ़ाने में, जहाँ जहाँ इसके अगेंस्ट में पाप हो रहा है उनसे लड़ने में लगे रहते हो। तो आपके कर्म के जो ये दो अंग हैं, ये दो प्रतिरूप हैं, ये तो हैं आप इसी भगवान के मेन डिशेस, जिससे उसकी कंटिन्यूएशन चलती है, उसकी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहती है। मीन्स वट एवर यू आर इनटू, these two forms of your being are like most required for the God to be, to continue। ऐसे समझिए दोस्तों इसको। ओपन सीक्रेट ऑलवेज सेज you are the most qualified, we are the most qualified professionals, that too Indian professionals are most qualified। I am so happy to note that Lord Death has said the same thing thousands of years back, maybe lakhs of years back to Nachiketas। नचिकेता आज तक है, लॉर्ड डेथ आज तक है। उनके बीच का कठोपनिषद में सेकंड सेक्शन का लास्ट सूत्र यही कह रहा है। और दोस्तों ये तो आगे भी कह रहा है, जो मैं तो शायद बहुत रफ मैनर में कह जाता हूँ, कि जो आपके लिविंग का ये ट्रेडिंग वाला जो वैश्य वाला जो रूप है, और जो शूद्र वाला रूप है, सेवा वाला रूप है, चलन को बढ़ाने वाला रूप है, कॉमन पार्लेंस में जीते रहने वाला रूप है, ये सब उसके साइड डिशेस हैं। साइड डिशेस नहीं, पिकल्स जैसी कुछ बात बताई गई है इसमें दोस्तों। सो ओपन सीक्रेट इज फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स। पहले आप ज़रूरी हैं, आप ही क्वालिफाइड हैं, ऐसा ही कुछ ये बता रहा है। और दोस्तों यह भी बता रहा है सूत्र कि बाकी सब क्या है फिर, दे आर जस्ट नथिंग, बेचारे हैं। इस टाइप के संदर्भ सारे शास्त्रों में आ ही जाते हैं दोस्तों, लेकिन इतना साफ, इतना क्लियर तो कठोपनिषद में ही मुझे मिला है दोस्तों ये चीज़, कि जो करो विद्या रूपी करो, क्रिएटिविटी में बिजी रहो, नहीं तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। इवन being a professional, if you are not into creativity, you are at a gross loss. You are a bigger sinner than one who has not undergone any professional training. He has not used the national resources to become a professional. You are worse than them in that case.
The supreme reality, which is the self sought by the seeker, is the presiding factor that makes possible the world of names and forms to exist and function. Friends, remember that man is the very roof and crown of things on the earth. ये तो हम समझ चुके हैं दोस्तों. हमारे माइंड्स इवॉल्व हो चुके हैं. बस यही एक डिफरेंस है हम में और बाकी सब जीवों में पृथ्वी पर. और मैन में जो ब्राह्मणत्व है, जो क्षत्रियत्व है, यदि वो हमारा जागृत है तो हम लोग इस सुपर कॉन्शियसनेस के, इस चेतना के, इस गॉडहुडनेस के मेन डाइट की तरह है. ये है दोस्तों ये सूत्र. और यदि हमारा वैश्यत्व या शूद्रत्व जागृत है, हम ज़्यादा उसमें अपना समय व्यतीत करते हैं, तो हम उसके साइड डिशेस की तरह हैं. केवल मौत, बार बार जीना, बार बार मरना, यही हमारी लिए निहित है उस केस में. और यदि हम इन चारों में से भी कुछ नहीं हैं, तो हम क्या हैं दोस्तों? डेड inert material. This is what which has been said to Nachiketa, आपका नचिकेता, to you, the fire in you, the child in you, the learner in you, by your most evolved form, your own death god, Lord Yama, whom you will meet in your most evolved state. ये है दोस्तों ये सूत्र. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. ऐसे हम इस दूसरे सेक्शन के अंत तक पहुंच गए. अब हम तीसरा सेक्शन शुरू करेंगे दोस्तों. थैंक यू सो मच. आई एम प्रीटी श्योर you would have liked the contents of this video. Please give it a like. Please share it with those friends whom you feel they are worthy of such knowledge. Please help us in enlarging our viewership. Thank you, friends. May God bless us all. दोस्तों, फिर से मेरे बचपन की प्रेयर. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. थैंक्स फ्रेंड्स.